But what kind of a director while pitching you are? Like, do you enact everything and Yeah, yeah? I do that. I love to like story. I guess when a Zoom call or PPM call happens, everyone will have their videos on ऐसा off. मेरा ही on रहेगा and I direct. Like literally, I've started doing this. कि if storyboard, I'm explaining the storyboard. उन लोगों को नहीं समझा, मैं कैमरा उठा के बोलता ये प्रोफाइल शॉट है, मैं इधर देख के ऐसा बात करूंगा, ये प्रोफाइल शॉट है, मैं देख के, और लैपटॉप मेरा हिलते रहता है, एंड तब भी उन लोग को समझता है कि क्लोजअप शॉट है, मैं लैपटॉप नीचे करके आई डू क्लोजअप. सो आई डू ऑल ऑफ दो स्टफ जस्ट टू मेक द क्लाइंट अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या होने वाला है फिल्म. I think these are the skills of a director कि भाई तुम पागल हो. हाँ, तुम्हें पागल होना ही पड़ेगा हाँ उसके लिए. मतलब हम जिस एडवर्टाइजिंग सेक्टर से आते हैं, you have to sell yourself. You have to sell yourself. You have to do that, and for me, I would love the client to be happy at the end of the day. Like I personally take care on the sets also. If I'm taking a shot, it's a wide shot. Correct. Or I'm taking a close-up shot, and for me it is my work, and I tell my agency people also कि don't, if I'm telling the client something, I don't want to tell them because वो lost in transition चला जाएगा. Correct. So if I've taken a shot and I'm like ठीक है ये shot मिला मेरे को, I go to the client's monitor and clients are sitting there, उन लोग अपना चकना वकना खाते रहते हैं. मैं उधर जाके बैठ जाता हूँ and I tell them कि ये shot लिया, इसके पहले वाला shot क्या है, इसके बाद वाला shot क्या आने वाला है. So for them, they on the set also they know कि edit कैसे होने वाला है. For a director, you need to know how to edit. That's it. Because when I go on set, I have my storyboard. मैं उतना ही करूँगा. मैं extra shots लेने ही नहीं वाला. Sweet. Because I'm a very lazy director when it comes on set. No, I like lazy directors. हाँ, मतलब you need, तुम एक्स्ट्रा लेना ही क्यों है, तुम वाइड शॉट में पूरा फिल्म क्यों ही शूट कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हें मालूम है एडिट में वो आने ही नहीं वाला चीज़, तुम क्लोजअप में ही जाने वाले हो. सो एज अ डायरेक्टर, इफ समवन वांट्स टू बी अ डायरेक्टर, लर्न हाउ टू डू एडिट, लर्न टू नो व्हाट योर फिल्म इज गोइंग टू लुक लाइक इन योर हेड, एंड वो एक बार तुम्हारा कंफर्म्ड है, कोई नहीं पूछने वाला कि कैसा होने वाला है फिल्म. डोंट टेक ऑल द शॉट्स बिकॉज योर एडिटर विल गेट फक्ड. ही विल येल एट यू बिकॉज माई एडिटर हैज येल्ड एट मी कि ये सब शॉट्स क्यों लिए जब आने ही नहीं वाले थे. I think as I said, right, directors have best friends. या एक उसका प्रोड्यूसर तो होना ही होना चाहिए ही बेस्ट चाहिए, फ्रेंड, होना ही एक चाहिए. डीओपी होना चाहिए और हाँ, एक एडिटर होना चाहिए. एडिटर होना चाहिए Because भाई. you people actually have to be on the same page when it comes to making any product, and that's very Exactly. important. Exactly. So, who is your favorite producer? Like, I want to know, like, if you want to talk about like why you like somebody, not favorite, but who compliments you. Like every director has a vision, right? And a particular person can convert it in camera, and somebody who can understand the way you are directing and knows how to edit. Who is that person for you? For me, like I said, I started my career and I was surrounded with the best people in this industry. Like we all were growing together. Correct. When I direct something, I have a certain team with myself. Like my ADs and DAs will be the same because एक ट्यूनिंग आ जाता है. लाइक माई DA सुलोचना एंड देयर इज वन मोर रिति, उन लोग मेरे को सेट पे आके मेरे को सुनाएंगे कि व्हाई वी नॉट डूइंग दिस, रेहान वी शुड डू दिस आल्सो, वी शुड डू दिस, एंड आई एम लाइक ओके ठीक है, ओके इफ यू तुम फील बोल रहे हो तो कर लेते हैं. करना चाहिए. अभी एक और ऐड था, मैंने ऑडिशन देखा ही नहीं, उसने, आई trust them blindly. Like that is my faith into my ADs also. Like I tell my ADs मेरे को schedule भेजते हैं. Again, I'm a very lazy person. मैं बोलता है ब्रो तू बस बता, कैमरा इधर रख, शूट कर, मेरे को बस कैमरा के पीछे रख, मैं schedule भी नहीं देखने वाला. So my AD teams are fixed. Like I want to work with them only. Correct. My editing team, Rohit Chandolkar, हाँ. he is my mentor. Like Okay. those guys में वो मेरे साथ था. My first edit happened with him. Okay. And Rohit and I, we have such tuning in my life कि टचवुड हमारे फर्स्ट कट अप्रूव होते हैं. दैट इज अ Sweet. बिग थिंग, दैट इज That's अ a big बिग thing. थिंग. लाइक That's a big आउट ऑफ लाइक 80% हमारे फर्स्ट कट अप्रूव हुआ है. क्लाइंट ने स्विगी का ये हुआ है, फिर येल का हुआ है, XYXS का हुआ है, हर स्टारबक्स का हुआ है. एवरी टाइम हमारा फर्स्ट कट, एंड वी टेल दिस कि अरे फर्स्ट कट अप्रूव्ड है, फर्स्ट कट अप्रूव्ड है यार, कैसा कैसा कैसा. I guess that's the batch. Huh? Honor batch. Honor batch, yeah. Like if your first cuts are getting approved now, you have reached everywhere.
because client first cut कभी approve नहीं करते. नहीं यार कभी नहीं हुआ. And that's why I said, so editing team is one that but I want to explore with DOPs. Like I have a lot of good friends. Like Dheeraj Sharma is one of the DOP. RD, when I started my career. Dheeraj Sharma and I started with promos. Correct. Like Netflix promos. Jose के साथ हम लोग बहुत करते थे. Bandra के रस, if you know Jose. Of course. Yeah, Jose, I love Jose, Cyril. Like they were 20 watts and those guys. Correct. तो कुछ नहीं, होजे आता था शूट करो. हम लोग बैंड्रा में गोरिल्ला शूट करते. मैं ऑटो चलाया बैंड्रा के स्ट्रीट्स पे आफ्टरनून में. ऑटो चलाया मैं. ऑटो वाला का ड्रेस. आई टेल यू वन फनी स्टोरी ओवर देयर. वी वर शूटिंग फॉर Amazon प्राइम. ऑटो चला रहे. उन लोग ने मेरे को बोला कि नेक्स्ट डे कि हम लोग ऑटो का शूट कर रहे हैं, रेहान कॉस्ट्यूम आएगा, तो ऑटो चलाना सीख. मैं रात को घर आया, एक ऑटो वाले को पकड़ा, मेरे को ऑटो चलाना. रात को मैं ऑटो सीख लिया कैसा चलाना है. नेक्स्ट डे मैं गया, कैब वैब है ना, होजे पीछे, मैं ऑटो वाला बैठा है, और मेरे पास वो टैक्सी वाले का बिल्ला था. एक बिल्ला होता है और मैं ऑटो चला रहा है. तो ऑटो चला रहा है, 3 कैमरा एंड एक्शन. ऑटो चलाया, हम लोग स्टार्ट किया, वो कुछ तो बोल रहा है और सामने एक पुलिस वाला है. मेरे को ऐसा रोका और होजे पीछे से, रेहान माँ की गांड पट रही है, क्यों रोक रहे, कि बोला नहीं रोकेगा तो मार देगा मेरे को. एंड ही लुक्ड इनसाइड एंड लाइक कुटे जातोस. मैं बोला काटर रोड साहब. अच्छा. देन ही लुक्ड एट मी. नसीब उसने गोप्रो नहीं देखा ऊपर. एंड लाइक मेरे को आगे छोड़. वो मेरे बाजू में बैठा है, मैं ऑटो चला रहा हूँ, वो बाजू में पीछे हो से. मेरे को पूरा इस बात का लगा कि उसको लगा मैं ऑटो वाला है. मैं बोला अरे यार. और फिर पीछे से सब प्रोडक्शन वाले भाग गए, बिकॉज़ गोरिल्ला शूट है, कैमरा पकड़ा तो जाते थे, मर जाते थे. So you were the director in that? No, I don't know what I was doing. I was just being told कि तू ऑटो चलाना सीख. और मैं, like I said, those guys was like the best thing that has ever happened to me. But again, पर यही तो क्रेजीनेस है यार. हम लोग जब काम करना चाहते हम काम करना चाहते, हम पूछते भी नहीं हम क्या कर रहे हैं. कुछ नहीं मालूम. अरे मैं झाड़ू मारा है सेट पे और मेरे को मजा है वो करने में भी यार. इन द वर्स्ट, आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस. लॉकडाउन में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल का रिस्ट्रिक्शन आ गया था कि सेट्स पे इतने लोग अलाउड थे. ब्रो मैं प्रोड्यूसर भी था, मैं क्लैप बॉय भी था, मैंने ट्राइपॉड भी सेट किया. मेरे को डीओपी और द वर्स्ट थिंग इज सबने पीपी किट पहना है. डीओपी पूछा शुभम किधर है, मैं बोला सर इधर. क्योंकि समझ में नहीं आ रहा पीपी किट समझ रहा कौन किधर है. क्लैप बॉय भी मैं हूँ. So we were doing something with Cobra Set or somebody, Leena Mangaldas, ठीक है. And I spoke to her. I was client servicing that project also. तो produce भी कर रहा था मैं, client service भी कर रहा था, सब कर रहा था मैं. तो I spoke to her and उसके बाद मैं set पे आया. She like, मैं क्लैप कर रहा था. So she is like, do you know where Shubham is right now? I'm like, hi, it's me. मुझे तू इधर क्या कर रहा है, किसी और को क्लैप कर. मतलब क्या करे यार, it's fun. 8 लोग हैं, 8 लोग एक कुछ कंटेंट बना रहा है. That's the fun of beauty of our industry that we हमको शर्म नहीं आता. हमने जब सोचा कि हम एड बनाएंगे, मूवी बनाएंगे, उस दिन हम बेशरम बन गए. बेशरम बनना ही पड़ेगा. बनते हम. have to do everything. मतलब वो जो ईगो है ना कि मैं ये नहीं करूँगा. एंड इफ यू आर स्टार्टिंग, स्पेशली यू हैव टू लीव योर ईगो बाजू में चप्पल के साथ, कि ये ईगो है, क्योंकि इतना गाली तुम्हें मिलने वाला है ऑन सेट. सब तुम्हें गाली देना इज एन इंटर्न, बिकॉज you are bound to do mistakes and you have to do mistakes to learn. You have to do that's a part of your process कि mistake करो, आगे बढ़ो, और फिर वो mistake वापस ना. अगर वही mistake तुम वापस करो, तुम चूती हो, तुम दूसरे इंडस्ट्री में जाओ. गाली तो खा के ही इंसान. बट लाइक तूने गाली खाया है बहुत, पर तूने कभी किसी को गाली दिया है? As a director, I always try कि मैं set पे किसको गाली ना दूँ. I want my set to go ऐसा chill. Like they should laugh. Like for me, it's always, it's for me, I don't want to boast, but for me, it's always the spot people. They work, spot people and light ज़्यादा. तो उन लोग ही जो मेहनत करते हैं वो उतना मेहनत मैं नहीं करता. मैं बैठा रहता, मैं मॉनिटर, रोल साउंड क्या कर रहा है, अच्छा ठीक है, साउंड, फिर स्पॉट वाला आता है. So for me, I just want to talk to everyone on set. Correct. Because they, at the end, they should go home कि अरे आज डायरेक्टर ने मेरे को ये बोला. Like I always play a prank on spot people. Like सुबह मैं आता हूँ, मैं बैठता हूँ, स्पॉट वाला आएगा, बोलेगा सर आपको क्या पीने को चाहिए. I'll be like आज गरम जीरा पानी दे मेरे को. और वो मेरे को ऐसा देखता है, अभी डायरेक्टर ने बोला है गरम जीरा पानी देने का. लगता है डायरेक्टर का पेट खराब है. लेकिन उसको मालूम ही नहीं क्या होता गरम जीरा पानी. ये क्या बोला, ये कॉफी लोग कॉफी मांगते हैं, चाय मांगता है, ये गरम जीरा, ये कौन है चूते तो गरम जीरा. फिर वो जाता है एंड अगर स्पॉट वाला कोई दूसरा स्पॉट में को जानता है, वो फिर उसको वापस लेके आता है, सर ये क्या कर रहे हो यार, बता दो ना क्या बुली क्यों कर रहे हो यार. बट दे फील हैप्पी अबाउट इट कि अरे यार हंसी मजाक में चल रहा है सर. यार मतलब आई लाइक
I was speaking to Kranti on on our pod कि I really hate how people have transitioned कि उन्होंने जिस culture में काम किया जिधर उनको गाली पड़ी ना वो उसको follow कर रहे हैं. I think we are coming in that generation where we can change things. 100%. तो हम अपने सेट्स पे मैं तो अपने सेट्स पे नो ऐसा लैंग्वेज को मैं सीधा कट कर देता हूँ भाई ये करोगे आप बाहर जाओ 100%. मेरे को नहीं चाहिए एंड आई रियली लाइक्ड हाउ यू सेड कि मैं नहीं करता हाँ. एंड आई रियली अप्रिशिएट पीपल लाइक बिकॉज यू कम फ्रॉम अ जनरेशन वेयर वी वांट टू चेंज थिंग्स वी डोंट वांट टू फॉलो दैट स्टेप ऑफ कि गाली दे के ही काम हो वो सकता है नहीं होता मतलब यू नीड टू अब्यूज कभी थोड़ा तो चिल्लाना पड़ता है सेट पे चिल्लाना इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज यू नीड टू मेक श्योर कि भाई हम शिफ्ट पे काम करते हैं यार Exactly. एवरीबडी इज देयर ऑन शिफ्ट कि भाई हमें इतने शिफ्ट में काम खत्म करना है वी हैव टू बकल अप एंड बकलिंग अप इज डिफरेंट and but abusing somebody is very different. Very different. So very yeah, different. of course we have to shout, we have to make things done. जो आधे घंटे में होना हो आधे घंटे में ही होना ही है. That's laid back attitude नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. And especially lazy directors, dude. I Oh. hate lazy directors. मैं that is me. No, but how you said कि everyone's working towards making your vision come true at the end of the day. Like no one's fucking up for कि नहीं मेरे को ये डायरेक्टर पसंद है मैं fuck up करूंगा वो नहीं होता. मैं चिल्लाता हूँ सेट पे मतलब नॉट एवरी टाइम बट किधर किधर बहुत ज़्यादा होता है आई येल एट समवन बट एट द एंड ऑफ द डे आई मेक इट अ पॉइंट कि आई विल गो एंड हक दैट पर्सन फर्स्ट बिकॉज अभी हुआ था कि आर्ट नहीं हुआ था सेटअप और मैं बोल दिया यार व्हाट इज दिस यार शी इज ओनली सेइंग नहीं और दिमाग कट रहा है मेरा बेंच फिर जब शूट खत्म हुआ आई हक्ड हर शी लाइक आई एम रियली सॉरी व्हाटएवर It's heat of the moment. या इट हैज टू बी यार पीपल एट द एंड ऑफ द डे मैं कितना भी हंसी मजाक करूँ देन पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड कि हंसी मजाक कर रहे देन आई हैव टू येल वंस ऑन माय सेट कि मैं हंसी मजाक के लिए नहीं आई एम हियर टू डू माय वर्क आल्सो एट द एंड ऑफ द डे ठीक है हंसी मजाक में चल रहा है पीपल आर लाफिंग एंड एवरीथिंग Have fun, but do the work first. do the work first and then have fun That's very true. Like हम लोग भी वही करते हैं ना लाइक हम सेट्स पे पहुंचते हैं प्री लाइट पे सब मस्ती करे अब अपना काम कर रहे हो ठीक है हम शूट पे आए सब मस्ती करे ही यहाँ खेल रहे बट द प्राइमरी गोल इज टू make the content there 100%. wrap it then hug and go and sleep yeah different if you want to sleep together then have that consent कि you're sleeping no Arji. no but like in direction what is the most expensive project you have worked on in terms of budgets I don't want you to take the name of the brand but take the number what was it like 100 करोड़ का करता था लेकिन मेरे को पैसा उतना ही मिलता ऑनेस्टली आई डोंट नो यार आई हैव दैट वन ब्रैकेट ऑफ 30 to 40 lakhs का प्रोजेक्ट करता हूँ मैं 20 to 30 या 30 to 45 but I never go into budgeting यार on I like I said you have to do everything I did producing also I hated producing I don't know how Kranti does it like huge respect for her and I've told her also there's huge respect for you but I can never do I can never understand money that's how it's differentiated in our industry right if you're a business guy or you're a creative guy and that's how we choose ourselves you can't do both things at once like I tried once yeah you tried 100% you know everyone will try मैं कभी नहीं किया वापस के मैं कभी नहीं मैं बोला भाई like I'm directing and I'm producing मैंने like पैसा need to make profit in this project ठीक है यार इधर आर्ट के लिए एक शोकेस लगा दे क्या इसका इतना होएगा हाँ लगा फिर पैसा कम हो गया फिर यही प्लांटर लेके जाने का 1000 रुपए का बजट so that day I decided either I'll produce either I'll direct then I decided I don't want to do production podcast करते हैं एक दो बंदे बैठते माइक लगाओ चूतिया बातें करो एडिट करो खत्म करो but do you listen to any other podcast Yeah, like as in spare time yeah I love Cyrus Says like oh I love it I don't like to listen to all this technical ज्ञान वाला podcast हाँ, मेरे को because भी नहीं होता। नहीं पसंद है मेरे को बकचोदी वाला podcast पसंद है फिर और क्या like Cyrus हो गया Cyrus हो गया then there is one called It Hasn't Aged Well it's about Okay. films oh yeah so पुराने मूवी पे they discuss like खोसला का घोसला काटे and all of this sweet stuff so these are two podcasts that I listen to like you have worked with so many brands like as a director what is that one skill set you need to understand कि भाई client के हिसाब से सोचना बहुत important है बहुत important है because you will sometimes you will feel कि brand क्यों push कर रहा है इस particular चीज़ के लिए as a director you need to understand in the first step itself कि ये क्यों हो रहा है so what is that one thing you have grown and understood working in this industry as a director कि brand से align होना is very important what is it
two things I've learned is you need to have patience when it comes to, because we humans, like I said, everyone has their every thinking about that one project. So you need to have patience, listen to them. Listen to them and understand. Second, which again I've been taught saying, I don't know if I'm using it in the right way, win battles, not wars. So it's something like you can't fight for everything. If the client is asking, if you're doing 10 things and the client is giving changes in 2 or 3 things, but 7 things to you're doing now. Correct. So वो 2-3 things के लिए you can compromise. ऐसा नहीं, a director should never be like मेरा ही creative है मैं ही डालूंगा, कोई मेरे को सुनाने का, मेरे को इतना ही बजट चाहिए, मेरे को यही चाहिए. You have to be production friendly, you have to be producer friendly at the end of the day. Correct. क्योंकि बहुत सारे directors आएंगे but producers उतने ही रहेंगे. And producers will give you work. Like for me, producers are my bosses, EPs are my bosses. Like I have to listen to them. If they tell कि client को ये नहीं चाहिए, client को ये चाहिए, brand mandate है, तो मैं वो सुनूंगा ही. वो करना ही है. वो करना ही है आपको. तो वही है कि win battles, not wars, or win wars, not battles, something on those lines. कि you can't fight for everything. Know your situation, know your fight. कि अगर इससे आपका film change नहीं हो रहा, तो कर दो ना. At the end of the day कर दो ना. वो भी खुश हो, आप भी खुश हो. बस वही मैं बोल रहा हूँ, आपको सेम पेज पे लेके आने का. सबको, everyone, from your brand to your DOP to your editing to your producers, everyone needs to come to one page where everyone is aware what you're doing at the end of the day. I have not worked as much as you have done, but what I have understood is, first मेरा thought हमेशा ये रहता कोई project में करने के लिए ना, I want everybody who is on that particular call to understand the goal first. 100%. हम मतलब brand का भी और the agency also and the production also to come on the same page कि हमारा goal क्या है. Once that goal is aligned, I guess it becomes very easier to understand कि करना क्या है. Exactly. Of course, then you want to play numbers, you want to do it. That's a secondary thing. But first goal oriented हो जाते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं और बनाना क्या चाहते हैं. एक बार वो ready हो जाता है ना, then it's very easy to get on the next step. Exactly. So exactly. I guess that has been very important for a lot of people to understand कि भाई हम क्यों कर रहे हैं. I don't want people to get lost while getting started also कि भाई okay there's an ad because Chinese whisper is the worst game in production. 100%. And I have if seen there's no it. communication, yeah. भाई सबसे गलत वही होता है when production में ही teams में हर departments में एक Chinese whisper चालू हो जाता है. Exactly. हाँ. So I guess that's where you need to have a great team. Exactly. Yeah. And like on sets, like bigger sets, how many people like are there? Like a lot of people don't know this. Like not people from the industry. Like they don't know what kind of a manpower we control and how big it is. Yeah, crazy. Like I have worked with 150 crew members being on set. पर पता है वो देखने से लगता नहीं 150. देखने से लगता ही नहीं 150. लगता 20 लोग ही खड़े थे. हाँ. मालूम नहीं 150 लोग थे. मैं क्रू लिस्ट देखता 150 लोग खाना खा रहे हैं. कौन है? वो मेरे को खाना नहीं मिला उसके बाद. Do you get lunch breaks? Are you that director who does running breaks? I don't like to eat on sets. नहीं but बाकी सबको खाना होता है. हाँ नहीं मैं नहीं. I don't like people also eating. अगर मैं नहीं खा रहा तो मैं डायरेक्टर है तू नहीं. Like I have seen 2 types of directors जो एक lunch break देते हैं. सब पूरे crew पूरा set एक time के लिए lunch break लेता है. एक running lunch break एक type के directors होते हैं. Which kind are you? यार honestly मेरे को कॉल लेने देते ही नहीं उन लोग. My EDs only, they don't let me take that call. I'm like lunch break है. कभी जब मेरे को lunch break चाहिए रहता है मेरे को lunch break देते ही नहीं है. नहीं सर running lunch है सब lights वाले खा ले. We are getting late sir. आप पीछे जा रहे schedule के सर आप. और मैं ना कभी ज़्यादा टिक्स लेता ही नहीं. Like I'm 3 टिक मिला मैं खुश हूँ. But there's सर running lunch. मैं बोला यार फिर मैं नहीं खा रहा. नहीं सर आप बैठो ना आपके लिए खाना लेके आएगा. बोला shit यार. फिर जब मेरे को रनिंग लंच करना है तब बोलते सर ब्रेक ले लो आप आधा घंटा खा के आ जाओ जो भी है. मेरे को नहीं खाना है ब्रो. और मेरे से नहीं होता खाने को. लाइक लंच तो मैं खा ही नहीं सकता ऑन सेट. सेम मेरे से नहीं होता. बिकॉज यू आर ऑलवेज इन दैट एंजाइटी कि अरे आगे का शॉट क्या है. Whenever I have worked on sets, I have always kept the best hospitality for food. ठीक है. Because खाना सिर्फ कॉफी दिया मेरे को इधर सिर्फ और पानी भी दिया है और प्लांट है. बेस्ट हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं. कुछ खाना वाला नहीं दिया. कॉफी भी मैं कोल्ड मांगा मेरे को हॉट दिया है. थैंक यू. हॉट डायरेक्टर स्टफ. पिया में कॉफी शक्कर भी नहीं दिया मेरे को कॉफी. ऐसे ही पी लिया. ये बहुत रोता है रे. इसको अलग अगले शूट पे मत बुलाओ रे. ओह डूड. मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया. You were saying कि
This हॉस्पिटैलिटी हाँ, या मतलब खाना तो हमेशा अच्छा मंगाने का, पर मेरे को कभी भूख नहीं लगा सच हाँ में। नहीं लगता वो। पता नहीं, ऐसे तो मैं बहुत भूखड़ है, हाँ, मतलब same, हर same. 2 घंटे में कुछ खाने को कुछ Same, चाहिए, हाँ. पर सेट पे कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं जाता ही नहीं। और सेट का फूड बहुत अच्छा रहता है, लाइक नो मैटर व्हाट, सेट फूड आर द बेस्ट फूड। क्या देते हैं यार उन लोग, कभी कभी मैं ऐसा, पापड़ मिलता है ब्रो, अनलिमिटेड पापड़, कितना खाना और है। मैं जाके उधर सिर्फ गाजर खा के आ जाता मैं गाजर खाता हूँ ताकि मैं गाजर दे सकूँ क्लाइंट को। But like being an advertisement director, do you have any inspiration? कोई ऐसा आइडल है, कोई इंस्पिरेशन है? अयप्पा, जिसने क्रेडिट कार्ड डायरेक्ट किया था, राहुल द्रविड। सो हाँ. अयप्पा इज दैट for me, I always Ayyappa, Rahul Bharti, then there's Ryan Mendonca also. Like all this, for me, humor is something that I really love to do. Like humor advertisement में, बाकी सब advertisements आते हैं, थोड़ा ड्रामा advertisements phase में मैं कर लूँगा, but humor जब आता है ना, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ये करेंगे, वो करेंगे, because again very subjective, client doesn't know humor. उन लोगों को जब explain करता हूँ, the way, so I've been told the way I talk is only funny. तो वो मैं explain जब करता हूँ, it's very funny over there, है कि नहीं? Very funny. Very funny, yeah. I'm a humorous guy. He's a humorous guy. तो फिर ह्यूमर जब आता है तो अयप्पा उन लोग का जो मैं आई सी वर्क रहे ना, ट्राई टू देन आई रियलाइज कि आई हैव बीन ट्राइंग टू फॉलो पीपल, बट वेयर इज माय विजन उसमें। सो एट द एंड ऑफ द डे आई ब्रिंग माय ओन टेस्ट इनटू इट, व्हिच इज वेरी अब्सर्ड। लाइक आई लव टू डू अब्सर्ड कॉमेडी, विटी। satire. हाँ, मतलब ये क्या है, ये क्यों कर रहा है, ये ह्यूमर नहीं हो रहा। फॉर मी इट्स ह्यूमर इज वेरी बकचोदी थिंग, कि कुछ भी करो तुम, कुछ भी, लाइक ये लॉजिक है ही नहीं इसमें। एंड आई लव टू डू दोज एडवर्टाइजमेंट्स। Interesting. Like I really like that your inspirations are all people who have done great work, like legendary stuff. Yeah. And nobody, like, do you have any international recommendation can't, of directors people could look up? नहीं, लाइक आई सेड आई एम अ वेरी लेजी पर्सन। मेरे को भी नहीं नहीं पता। होता उतना रेफरेंस। मैं कल रात को लिख रहा था कि कोई इंटरनेशनल डायरेक्टर का नाम याद करके रखता हूँ कि क्रिस्टोफर नोलन आई लव। नोलू भाई लोलू भाई आप बहुत अच्छे लगते हैं हमें। कभी कोलैब करते हैं, कभी कोलैब करते हैं, अच्छा काम करता है मैं कम पैसों में। अपन ने नेटफ्लिक्स भी किया हाँ, घर आओ कभी आओ हवेली पे। अब मुंबई आए बुलाए नहीं। बट एडवर्टाइजमेंट आई डोंट नो, बट इंटरनेशनल डायरेक्टर्स तो वही है जो सबको मालूम है। हाँ, मतलब नॉट अ वेरी गीक अबाउट कि भाई आई नो दिस पर्टिकुलर पर्सन। नो, वो नहीं होता। बट व्हेन पीपल टॉक ना, अरे तूने इसका देखा, और मैं बोलता है हाँ देखा है मैंने नहीं, बिकॉज जस्ट हैव टू बी स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ देम। करेक्ट बट यार again, like knowing so many directors, so many work, but being as a director initially, I'm damn sure, and even now referencing is a very important part of a director. 100%. So how do you be updated for referencing कि मतलब अब कितना content देखते हो? A lot of designers, what they do is they have pin boards and everything. They keep updating themselves, because whenever they are researching, they are making their pin boards. As a director, how do you operate? I would suggest a director, if you're an advertisement director, आप तो पहले अगर YouTube प्रीमियमशिप है आपका, उसको बंद करो। You need to see advertisements. You need to see a lot of ads, and whatever ads you have to see, you have to make a separate playlist out of this. Like I have this YouTube playlist where I know, oh, this ad is good for voiceover. Oh, this ad is good for your location. Oh, this ad is good for your camera. Categorizing everything. Like whatever you watch, just put it. कभी ना कभी तो use आने ही वाला है लाइफ में आपके। वो playlist आप बना के रखो. Then understand your genre. Like what do you want to do? Like I said, Trupti is one of my very good friends, and she's a beauty director. Correct. मतलब beauty director, but she works in beauty brands. Correct. She knows, and she is mastering it. Like she loves to do that. उसकी referencing वही है. But if I tell her कि तू humor में आ या तू narrative में आ, वो नहीं कर सकती. Same goes with me. मैं beauty में कर ही नहीं सकता, मेरे को करना भी नहीं है beauty में. So you need to understand what genre you want to cater to. Correct. If you understood कि ये genre में काम करना है, आपको humor ही बनाना है, आपको wacky music like Prashant, he wants to do I love Prashant's work also. Like he wants to do wacky music, or you want to do just beauty. Categorize yourself and do that only. But I'm not saying कि just try doing that. Don't be compartmentalized, because एक बार industry में बोल दिया आप comedy है तो आपको दूसरा काम मिलेगा ही नहीं. Like for me, I also want to do lifestyle directing, but मेरे को कोई देता ही नहीं है, because मेरा reel ही नहीं है वो.
So do everything, but know what you want to do. And like just seeing ads, like you said कि premium मत ले YouTube का ये, that is there, but like I've seen a lot of PPMs, it has all international. हाँ, वो मत करो. हाँ मतलब मत करो. मेरे को नहीं समझता कि why do you want to have international reference board? Keep little Indian reference board because that's more practical. That's more practical. That's like, more practical. Like you can't have Tokyo buildings in India, dude. Come on. आप कहाँ से street में एकदम neon LED किधर करोगे यार? नहीं समझता मेरे को वो चीज़. No, agree. So I don't understand कि why do people have international reference boards, because at the end of the day your artist talent in front of camera is a Asian motherfucker Indian. हाँ, तुम और इंटरनेशनल में सब गोरे चिकने ब्लैक्स व्हाटएवर दे आर उधर वो चल रहा है, अपने इधर वो नहीं हो रहा ना. वी आर नॉट गेटिंग दोस फेसेस, राइट? वी हैव इंडियन फेसेस. सो रेफरेंसिंग आई थिंक इज very important. At the same time, it has to be very real. Yeah. So that reference should be exactly if somebody from the brands and sees it, it clicks. Yeah, it clicks for them 100%. So like, do you have like a YouTube playlist for everything, Yeah. genre wise and category wise? But like, do you like a lot of PPM? Do you sketch your sets and everything, like how it's supposed to look and everything? I have to do that. Yeah, you like do? for me, PPM, when I was doing DA also, I remember all my PPM pages go 100 and above. What? Yeah, like I need to make it as so there are 2 points where why I You said you are lazy. I am lazy, but that's my work only, na. I have to make it as 100. detailed. 100 slides होता है, like 70 तो average है, 100 पे भी जाता है, 110 पे भी जाता है. 2 things why I do that is because I am sure and they are sure कि क्या होना चाहिए deck के अंदर. कॉस्ट्यूम क्या है, कास्टिंग क्या है, स्टोरी बोर्ड तो मेरे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट बाकी सब माचुदा जो होने का है, स्टोरी बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टर्स कौन है मेरे को वो भी फर्क, मेरे को नाम भी नहीं मालूम एक्टर्स के, मेरे को कोई याद नहीं रहता. बोलते सर आपके साथ काम किया, मतलब अच्छा मेरे को नहीं याद तू कौन है. सो स्टोरी बोर्ड एवरीथिंग इज डिटेल्ड आउट, 100 तक जाएगा, खुश होएगा. Basically you're concrete before you go on set. You have to be, but that's the beauty of advertisement. You're concrete, but when you go on set you still don't know कि क्या होने वाला है. That's why I love. And the reason why 100 जाता है is A for this, B client बोर हो जाता है. Client at the end वो give up करता है. Approved. मेरे साथ ऐसा हुआ कि there were 2 films. One film में there were 8 setups. Second film was 1 setup couple वाला था. वो 8 setup ही explain करते करते रात को 1.5 घंटा हो गया. 8 setup. सेकेंड केस में क्लाइंट बोलते भाई कल करते. मैं बोला नहीं, मैं आज ही करूंगा इसका पीपीएम. को करना है, अपने को करना है आज. वो बोर हो गया, वो चेंजेस ही नहीं दे रहा. जो करता है कर. इतना चूते है, मेरा दिन खराब कर दिया तूने. 3 घंटा पीपीएम रख रहा है तू. Fuck yeah, I've never seen 100 slides PPM, dude. Like my director when I was a DA is like, he looked at me because he was before going to PPM he only saw कि आइला 70 takes है, are you mad or what? मतलब अभी you explain, मैंने बना के रख दिया. Fuck. That's super crazy. But I think if you're making such a detailed deck, I think it helps every person on the department. Everyone needs to know what. सबको पता है क्या करना है. पता है क्या करना है. But do you go on sets and are you that nosy director? नहीं. ये नहीं, मेरे को ये costume change करके दूसरा दिखाओ. नहीं. You are very concrete with your ideas beforehand. यार I have realized कि I don't know most of it. Like art में people ask कि ये painting कैसा करने का है, ये wall color क्या होना चाहिए. मैं बोला देखो भाई मेरे हिसाब से तो हाँ, you are the so for me advertisement is a very collaborative process. Everyone's working towards it. I hire you for a reason. Correct. I have a vision. ठीक है, DOP धीरज राहुल या जो भी है, जो भी मेरा ये है, तू इसको अप कर सकता है तो कर, मेरे को अच्छा लगेगा. To a PD also, I tell her or him कि मेरा ये approach है. You tell me what you want to do. Correct. You do it. Now, if we are syncing on तेरा vision board और अच्छा है मेरे से, तो obviously we'll do that. We'll go for that. I just tell them the background of what is going to happen. If it's a narrative and if it's an advertisement, I tell them this is the family. ये family का बाप IT में है, mom इधर है, ये है, ये background होना चाहिए, ये background is something that I want to do it. They will give you better references than what you do.
And that's their own pen boards. Yeah, 100%. And everyone, like I said, it's a collaborative process. You just can't be like, नहीं मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा ही सुनना चाहिए. नहीं, मेरे को कोई अगर कोई लाइटमैन भी आके बोला कि सर अगर आप ये ट्राई कर सकते हो, वो अगर मेरे इसमें जाता है, मैं 100% करूँगा. I that's the best part on sets ki like you, and especially for ads, I'll tell you, like I've been on music videos, I've been on ads, I've been on short films also. For ads I really like the thematic ki har cheez ka ek department head hai, हेड है. and well versed guy person people on sets, and they are enthusiastic if you give them the freedom ki भाई ये ऐसा दिखना चाहिए, अब करोगे कैसे ये आप बताओ. ये आप बताओ. हाँ. हाँ, he will come. और इसमें ना जुगाड़ भी है, इसमें खर्चा भी है, दोनों चूज कर सकते हो. एंड ये है लाइटिंग को स्पेशली. हाँ, लाइटिंग वाले तो मतलब I like speaking to gaffers कि भाई ऐसा ऐसा लाइटिंग करना है. saying it cause इसके बाद गैफर आने वाला है. ये ये ईस्टर एग था. ईस्टर. अच्छा, बता दिया यार. ये डायरेक्टर्स को मत बुलाया करो यार, सब बता देते साले. But that's the beauty of ads ki everything has a dedicated division, and everybody is working towards the same goal, and if you're on the same page it's very easy to pull out that gig. But when you're not on the same page, it's the It's the most most difficult fuck all thing to I've been on those pages also. difficult. But right now you're doing ads. Do you want to keep doing ads for a larger longer term, or do you want to pivot to something else? Right now I'm enjoying this. September में I did in 7 days I did 5 different projects. Every day I worked with different people. That And was I exciting. loved that. Seeing new faces, हाँ, creating new journey. exactly. That's what I'm saying. The advertisement is telling your story in 30 seconds. And I worked with different people, like how you said, different people, different departments. Everything was different. And मेरा shoot खत्म होता था, मैं रात को PPM करता था. Shoot खत्म होता था, रात को PPM करता था. मैं ये कर रहा था. Do you like it? I love it. I love the hustle. Like right now also I did Hyundai वाला on Monday. और Tuesday को मेरा दूसरा shoot था for Cremafin. So वो मैं अनवी स्टे इन नवी मुंबई, तो मड में मेरा 1:30 को शूट खत्म हुआ. मेरे को घर पहुंचते पहुंचते 3:30 हो गया, 4 बज गया. मेरा नेक्स्ट डे का कॉल टाइम 9 बजे था इन अंधेरी. आई हैड टू गेट अप at 7, so I slept for 3 hours. Why didn't you just book a room in a hotel in Andheri and इतना sleep? पैसा देता नहीं है रे कोई मेरे को. अबे पर तू उधर से उधर आएगा तो पैसे तो खर्च हो ही देख रहा है. लॉजिक अगर डाल रहा है तो ये कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता. मेरे को भी नहीं मालूम मैं क्यों नहीं रूम लिया. मैं गया, घर गया, सोया 3 घंटे में उठ के. एंड नहीं, मैं डायरेक्टर है, मेरे को अपने बेड पे नींद आता है. हाँ, yes, This is a statement. I want my own commode I can poop on. Like that is my thing. वो That's there. खुद के घर में हगने की बात ही अलग है. Proud self. प्राउड से. उसमें 2 लिंडी एक्स्ट्रा गिरता है. Fuck you. So यार छोटे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया. What's the difference between both? As a director, छोटे प्रोजेक्ट्स पे if you work and if there are less project उसमें ज़्यादा स्ट्रेस रहता है. Like the brands, if they give छोटा projects, उसमें ज़्यादा the brands and the clients they get anal about stuff, because again I'm not saying that they are bad people. They don't know. They don't know it कि how it works or how your whole advertisement industry functions. You have to hold their hands and they have to tell them कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है. Like अभी जब शूट कर रहा था उसमें बोल रहे why are we doing this, ये निकाल सकते क्या? They were asking me everything. I'm like हाँ कर सकते हैं. You tell me what you want to do. At the end of the day it's your film, it's not my film. Correct. तुम्हारे पेज में जा रहा है, तुम लोग ही मेरे को पैसा दे रहे हो. So when there is a smaller brand giving you smaller money, they get more taxing because you have to tell them everything. Whereas when it comes to bigger brands, they give you money, whatever it is, but they know their shit. They know ki what is my process and they will never get involved into that. Correct. Here you have to explain them everything. Ki if there's a storyboard, you need to understand that I have made a storyboard, but set पे change हो सकता है. Like storyboard में उन लोग आर्ट सेटअप देखते हैं. मैं बोला ये है ही नहीं ना ये स्टोरी. आप फिल्म देखो ना. आर्ट सेटअप उधर नहीं, बट अगर ये बॉटल उठाया नहीं और अगर रख के कैसा होएगा, आप वो स्टोरी बोर्ड में क्यों नहीं डाले? मतलब वो सेट पे कर सकते हैं. वो सब समझाना पड़ता है. it's like spoon feeding. Spoon feeding. You have to do, and that's what I will come back to saying कि patience रखो. If you want to be a director, have patience in the process to become a director. And I'll tell you, no direct, like I don't know, this is my thing. Even Sanjay Leela Bansali, when he goes on set, it is a new learning for himself. Totally. So you need to have that patience to become a director, and you have to hustle, Baba. मतलब
गांड रगड़ना ही पड़ेगा टू रीच देयर. यू गाली खाना पड़ेगा, इतना खाना पड़ेगा, काम गंदे से गंदा काम करना पड़ेगा टू रीच देयर, एंड देन इट विल बी वर्थ इट. एट द एंड ऑफ द डे यू लुक पीछे एंड यू लाइक फक मैं आई नेवर थॉट कि मैं सेट साफ करूंगा, झाड़ू करूंगा. कभी लाइफ में किया नहीं मैंने. अपना घर नहीं साफ किया. अपना घर साफ नहीं किया है मैंने यार. मम्मी अभी भी नहीं करता. मेरा अंडरवेयर ऐसे ही लटका रहता है. वही अंडरवेयर मैं कल पहन लूंगा, आज पहन के. बट यार आई गेस वो सबको करना ही पड़ता है. इफ यू आर एंटरिंग दिस इंडस्ट्री यू हैव टू कीप एज वी सेड इनिशियली कि अपना ईगो, जूता चप्पल बाहर रखने बाहर का, रख के करो. नंगा आने का, काम करने का, घर जाने का, बस. सोने का. एंड बी वेरी ट्रू टू योर वर्क यार. एट द एंड ऑफ द डे वही है. लव योर वर्क. You have to love what you do, and how you said you have to be mad to be in this industry. वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है, आई नीड टू हैव वर्क लाइफ बैलेंस, नहीं मेरे को यही करना है, नहीं मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं. ये सब छोड़ के आओ, गांड रगड़ने रगड़, बिकॉज एवरी वन वर्किंग. करेक्ट. एंड इफ यू आर सेइंग कि नहीं मेरे को 8 घंटे के बाद आई नीड टू हैव माई ब्यूटी स्लीप, वो नहीं मिलने वाला. नहीं मिलता यार. लाइक कम टू प्रोडक्शन, सारा तुम एक प्रोजेक्ट पे शूट जिस दिन है उसके 3 दिन पहले से तुम्हारा नींद खत्म हो गया तुम. एंड फॉर मी एज अ डायरेक्टर मेरा तो वो पूरा हफ्ता खत्म हो गया. बिकॉज मैं एडिट पे बैठा रहता हूँ 12-12 1-1 बजे को. मैं फ्रॉम वाशी 1 AM को मैं जाऊंगा फॉर ग्रेडिंग. अगर मेरे को कॉल आए कि ग्रेड के लिए यू हैव टू कम, यू हैव टू डू दैट. You have to leave aside. But I'm telling you, yaar, guys, if you're coming to this industry, you have to be mad. If you are saying कि नहीं ये नहीं, and there will be discomfort into this when you enter कि अरे it's a newer industry for everyone. Like I said, advertisement is chaos in a very compartmentalized way. But that chaos is something else. You go on set, वो लाइट चलता है, जो आवाज आता है, उधर क्लैप वाला चिल्लाता है, उधर डायरेक्टर, उधर आपा आता है. I guess the reason I love doing ads, music videos, production basically is because we meet so many people. 100%, yeah. It's most stories, it's great experience, and मैं कितना भी कभी भी मैं सोचता ना यार बहुत हो गया नहीं करने का, मैं कहीं ना कहीं घुस के वापस वही करूंगा, वही करेंगे. बिकॉज नहीं छोड़ सकते यार. सकते. और तुम ये लत है, पता है प्रोडक्शन. लत है 100%. It's like it's a drug for you. Like to people who are seeing this and who will, if you want to take something from me right now, is you have to be mad and you will love this. You'll love this and वो छूटेगा ही नहीं तुमसे. हाँ, मतलब तुम काम करो और तुम घर जाके सो. हाँ, भसड़ के बाद भाई, वो जो और तुमको पता है कल वापस भसड़ है, और करना ही है वो. पर भी साला क्या मस्त नींद आता है. क्या मस्त नींद आता है यार. Like I did one for जुगाड़ू जिग्नेश BGMI. I love that film. Like that is one of my. उसमें मैं इतना funny हो गया था ना. Like the client loved it. अभी भी it's like a sketch only. जुगाड़ू जिग्नेश सेट पे मैं गा रहा हूँ जुगाड़ू जिग्नेश. तारक मेहता का कोई तो राज अंडरगढ़. If you watch it, you'll love it. Like I really loved that process. मैं रात को गया घर पे, मैं सोया और मैं नींद में चिल्लाया, ओके रोल साउंड, रोल कैमरास, एंड देन आई एम लाइक ओ फक, इतना मेरे में वो PTSD था. आई एंजॉयड दैट. मीरा रोड में we did some 48 shots, different treatment in a day, 12 घंटे के अंदर. Fuck. So that's the when you said ना कि वो satisfaction वाला नींद जो मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा कोई दूसरे काम में. And I guess we are more enthusiastic about as people कि मतलब एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट बहुत अलग है. हाँ, बहुत अलग है. पर मजा उस पहले वाले से ज्यादा आता है. 100%. It's not the excitement of going on a shoot. It's just to do more and more stuff. Exactly. And लोग बोलते हैं ना बाहर से जो नया आता है ना, बोलता है यार पोर्टफोलियो बनाना. बोला तू घुस अंदर भाई, तू पोर्टफोलियो नहीं, तुम कुछ नहीं, तू भूल जाएगा पोर्टफोलियो बनाने के टाइम के बाद. 100%. You will just remember when somebody asks कि पोर्टफोलियो CV कुछ है, resume है क्या? नहीं, कुछ नहीं. अरे भाई करते जाओ, साला तुमको समझेगा नहीं कब 5 साल निकल गए. मेरे को भी नहीं समझ रहा मेरे. हाँ, you are old dude now. You're too old. 2016 यार. Fuck. Like now, पता क्या? I want to do after 10 episodes now. I want to do like a Navi Mumbai. I want to call everybody from Navi Mumbai who's into. That's a very good idea. Like बहुत लोग हैं यार हम लोग. पता है? हमको पता नहीं है. Like I'll give you numbers. There's so many producers over there. I know. So many DOP. Line producers from here. Exactly. And there's one director only in Navi Mumbai. क्रांति. Ryan. साला क्या मार यार. वो प्रोड्यूसर है ना, प्रशांत, बट अंधेरी में रहता है ना अभी. ओह, हाँ, सुनना है मैं एक ही है. और कोई नहीं है.
मैं अगर कोई दूसरा ढूंढेगा। डायरेक्टर आया ना शुभम, मेरा एपिसोड मैं सू करेगा भाई मेरे को। आई विल गिव यू सीनियर डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर, हाँ ठीक है, देयर इज अ गेम, इट्स बेसिकली यू हैव टू टेल 2 truth 1 lie. You have to just say 3 statements. उसमें से 2 सच होना चाहिए और 1 झूठ होना चाहिए. About Anything on about sets myself and- on sets. हाँ. Like something which is controversial, and we will decide which is a lie and which is 2 are truth. It's for me and the people who are watching this pod. I don't know. Give me an example. क्या क्रांति ने क्या किया? एग्जाम्पल होता है कि भाई मैंने एक शूट सेट पे मैं लेट पहुंचा, उसके वजह से क्लाइंट ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया. Okay. फिर दूसरा कि मेरा एक शूट था जिसमें आई डिड द होल प्रोडक्शन, देन एमसी स्टैन डिसाइडेड नॉट टू कम ऑन द सेट, एंड द थर्ड कुड बी समथिंग, एंड यू हैव टू डिसाइड व्हिच इज अ लाई. But it has to be controversial. मतलब Like I have a lot of controversy. लेट्स गो फॉर इट. पता चला रियान ने सब सच ही बोल दिए. मेरे को झूठ कहाँ से सोचूं क्योंकि सब हुआ है मेरे साथ. I have been drunk on a set. Second statement is I had gone on a set knowing that I had COVID. And third statement is knowing that everyone had COVID, I had COVID and everyone. Third is on one of the shoots, I had taken out a printout worth 30,000. And वो कुछ यूज नहीं हुआ था. थर्ड इज अ लाई. इज इट? No. वो नसीब मेरे ऊपर नहीं आया था. मैंने दूसरे पे डाल दिया था भाई, उसका मालूम नहीं जॉब मिला कि नहीं, मैं ऐसा हो गया था. आई हैड आस्क्ड फॉर अ प्रिंट आउट, तो मैंने बोला भाई एक स्क्रिप्ट का 10 पेजेस था, तो मैंने ऐसा 10 पेजेस मांगा, तो 100 स्क्रिप्ट हो गया वो, समथिंग ऑन दो 100 पेजेस हो गया. तो दिस प्रोडक्शन लेडी, शी वाज न्यू एंड शी केम एंड आई टोल्ड हर आई नीड स्क्रिप्ट्स. यार ग्रैंड हयात में शूट कर रहे थे, तो देन वी वर डूइंग अ ब्रीफिंग विद द DOPs एंड फिर उसमें मेरे को उसका कॉल आया, सर कुछ तो बोला उसने. मैं बोला नहीं, मेरे को प्रिंट आउट चाहिए, व्हाटएवर इट इज. तो मेरे को प्रिंट आउट आए और सिर्फ उसमें से एक ही यूज़ हुआ स्क्रिप्ट, बाकी के 9 मेरे को अभी भी मालूम है, दोस्त गाइस के एक ड्रॉर में रहेगा वो, और सब बंडल था. फिर लंच ब्रेक हुआ तो ग्रैंड हयात में मैं ऐसा बुफे पे गया, लंच खा रहा हूँ, उधर से वो प्रोडक्शन वाली आती है और वो होटल वाला आता है, सर ये बिल है समथिंग. और फिर मैं बोला मेरे को क्या लगे ग्रैंड हयात रहेगा यार, मतलब 100 पेजेस का कितना 700 750 800 रहेगा. मैंने 1000 रुपए मैक्स से आएगा, 1000 रुपये मैक्स ₹10 के भाव पे. हाँ चलो जो भी है. फिर उसने बोला, मैं बोला कितना है बिल, बोलते सर 25,000 फॉर अ प्रिंट आउट. मैं ऐसा देख लिया, मैं बोला भाई साहब ये मेरे ऊपर तो आना ही नहीं चाहिए, गांड लग जाएगी यार. मैं बोला हाँ तो मेरी कैसे गलती, मैंने तो सिर्फ प्रिंट आउट मांगा, मैंने ये नहीं बोला कि आपको ग्रैंड हयात से चाहिए. और मैं चला गया वो करके. तो मैं गया, मैं बोला फक, मैं उसको बोला भी इतने में मैं बेंचो जेरोक्स मशीन खोल दूँ, मैं शॉप खोल दूंगा 25,000. 100. और फिर मैं ऐसा क्या खाने लगा. फिर मैं अपने बॉस को सैबियो को कॉल किया, सैबियो को बोला सैबियो ऐसा सीन हो. सैबियो बोलता है कि अगर इफ दिस कम्स ऑन मी रेहान, आई विल टेक इट फ्रॉम योर सैलरी. मैं बोला मेरा सैलरी 10,000 है यार, तू 25,000 कहाँ से लेगा भाई, मैं नेगेटिव में चला जाएगा. बट द गुड थिंग इज वो नहीं आया मेरे ऊपर, उन लोगों ने खुद सॉर्ट किया. 25,000 का मैं प्रिंट आउट लिया. बट इट मस्ट बी जस्ट हयात कॉस्ट. हाँ इट वाज हयात कॉस्ट ओनली. वो तो इट्स नॉट अ डेफिनेट कॉस्ट ना, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम. आई एम अ डायरेक्टर. आई एम अ डायरेक्टर. फक यू. तो कौन सा रॉन्ग कौन सा है? लेट पीपल डिसाइड. मेरे इतने कांड हुए ना सेट से, बट आई वाज नेवर ड्रंक ऑन सेट. लव. मुझे वो ट्रूथ लगा, पता नहीं क्यों. लगता है ना मैं बड़ा मैं शक्ल से ये पी अभी भी पी के ही आया मैं. एक कॉफी नहीं है. हाँ ये मस्त ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व. Fuck. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, so sir. much. Love you. Thank Love you. you everyone. Love you. Love you guys. Lazy director signing out. Yes. And cut. Cut. Back up.